Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the second part of the solutions to NCERT questions of the first chapter of class 11th chemistry, some basic concepts of chemistry. In this video we will discuss solutions to exercise questions 7 to 12. So let's begin. First question today we have is how much copper can be obtained from 100 grams of copper sulfate? 100 grams of copper sulfate CuSO4 में से कितने ग्राम कॉपर निकाल सकते हैं? तो कॉपर सल्फेट 1 मोल इक्वल टू 3.5 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 दैट इज मोलर मास इक्वल टू 159.5 ग्राम्स. कैसे? 63.5 ग्राम मोलर मास फॉर कॉपर, 32 फॉर सल्फर एंड 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन. 4 ऑक्सीजन के एटम है तो 4 टाइम्स ऑफ 16 इक्वल्स टू 64. सम कर देंगे 159.5 ग्राम्स आ गया मोलर मास ऑफ CuSO4. 159 grams of CuSO4 contains 63.5 grams of copper. क्योंकि 159 ग्राम में एक मोल में एक एटम है तो 63.5 grams of copper हो गया. 100 ग्राम of CuSO4 will contain, तो 100 ग्राम में कितना होगा? 63.5 upon 159.5 into 100 grams of copper. The amount of copper that can be obtained from 100 grams of copper is 63.5 into 100 अपॉन 159.5 which is 39.81 ग्राम्स. यानी कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से 39.81 ग्राम्स ऑफ कॉपर निकल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1% respectively, given the molecular mass of oxide is 159.69 gram per mole. कैसे करेंगे? Mass percent of iron is 69.9 given, mass percentage of oxygen is 30.1 also given. Molar number of moles of iron present 69.9 upon 55.585 equal to 1.25. Moles of oxygen 30.1 upon 16 equals to 1.88. Divide किया by molecular mass. Ratio 1.25 is to 1.88. Simplest whole number ratio में किया तो 2 is to 3 आ गया. The empirical formula of oxide is Fe2O3. अब empirical formula mass equal to Fe2O3 2 into 55.85 into molecular mass plus 3 into 16 for oxygen, तो टोटल आ गया 159.69 जो कि गिवन था. मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इक्वल्स टू n जो निकालना है 159.69 गिवन है अपॉन 159.7 इक्वल्स टू 0.999 which is approximately 1. Molecular formula of the compound is obtained by multiplying empirical formula with n. अब n multiply कर 1 आ गया था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, we get Fe2O3 which is the molecular formula of the compound. Next question, calculate the atomic mass average of chlorine using the following data. Average atomic mass of chlorine निकालना है. 2 आइसोटोप दिए हुए हैं 37 एटॉमिक मास वाला और 35 एटॉमिक मास वाला. 35 एटॉमिक मास वाले का जो नेचुरल अबंडेंस है वो 75.77 है और 37 वाले का 24.23 है. मोलर मास दोनों का दिया हुआ है 34.96 और 36.96. अब कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ 35 क्लोरीन मोलर मास ऑफ 35 क्लोरीन इंटू प्लस फ्रैक्शनल abundance of 37 क्लोरीन इंटू मोलर मास ऑफ 37 क्लोरीन. मतलब कौन से वाले का कितना परसेंटेज है दोनों आइसोटोप्स का और उनका मोलर मास कितना है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. तो वी हैव 75.77 अपॉन 100 इंटू 34.6989 जो कि गिवन वैल्यूज है प्लस 24.23 अपॉन 100 इंटू 36.9659 विच इज़ 5%. सो अपॉन 100 कर दिया. इसको सॉल्व कर लेंगे 35.4527 यूनिट्स. ये फाइनल आंसर आ गया. तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.45. इसको राउंड ऑफ करके 35.5 हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग. इथेन के 3 मोल्स में निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन. मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, इथेन कितने मॉलिक्यूल हैं इथेन के और कार्बन और हाइड्रोजन के एटम कितने हैं इन 3 मोल्स ऑफ C2H6. So 1 mole of C2H6 contains 2 moles of carbon atoms,
Therefore, number of moles of carbon atom in 3 moles is 2 into 3 equal to 6 moles. 1 mole of ethane contains 6 moles of hydrogen, so 3 moles contain 18 moles of hydrogen. 1 mole of ethane contains 6.023 into 10 power of 23 molecules of ethane. So in 3 moles we have 3 into 6.023 into 10 power of 23 molecules, which is 18.069 into 10 power of 23 molecules. Next question. What is the concentration of sugar C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make the final volume up to 2 liters? मतलब कि एक सोल्यूशन में शुगर का कंसंट्रेशन कितना है इन ग्राम पर मोल अगर 20 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया गया वाटर में टू मेक 2 लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन. 2 लीटर सोल्यूशन में 20 ग्राम अगर डिसॉल्व करा जाता है शुगर तो उसका कंसंट्रेशन कितना है इन ग्राम इन मोल्स पर लीटर, ये निकालना है. तो मोलैरिटी हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मास ऑफ शुगर अपॉन मोलर मास ऑफ शुगर अपॉन वॉल्यूम विच इज़ 2 लीटर्स. मास ऑफ शुगर गिवन है 20 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ शुगर निकाल लेंगे 12 इंटू 12 C12 प्लस 1 इंटू 22 H22 प्लस 1 इंटू 16 फॉर O11 अपॉन 2 लीटर्स. सॉल्व कर लेंगे 20 अपॉन 342 मोलर मास अपॉन 2 लीटर वॉल्यूम. ऑन सॉल्विंग वी गेट 0.02925 मोल पर लीटर. तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज 0.02925 मोल पर लीटर. Last question is, if the density of methanol is 0.793 kg per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? डेंसिटी दी हुई है 0.793. कितना वॉल्यूम चाहिए 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए? तो मोलर मास ऑफ CH3OH मीथेन का कितना होता है 32 ग्राम पर मोल equals to 0.032 kg per mole. Molarity of ethane 0.793 upon 0.032, which is the density upon mass. वहाँ से molarity निकाल ली और ये 24.78 मोल पर लीटर. Since density is mass per unit volume, तो M1 V1 equals to M2 V2 अप्लाई कर सकते हैं. एक गिवन है, एक निकालना है. यहाँ से हमको V1 निकालना था. M1 हमें पता है 24.78 मोल पर लीटर इंटू V1 प्लस जो सोल्यूशन बनाना है उसका 2.5 लीटर वॉल्यूम है और M2 है 0.25. सो M1 निकाल लिया, M2 पता है, V1 हमको निकालना है और V2 हमको पता है. 2.5 लीटर सोल्यूशन बनाना है. तो कितना चाहिए सॉल्व कर लेंगे. V1 आ जाएगा 0.0252 लीटर्स इक्वल्स टू 25.22 ml. तो 25.22 ml हमें यूज़ करना है मिथेनॉल to make 2.5 liter solution of 0.2 molar solution with density is 0.793 kg per liter. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम हो सके. मिलते हैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.